Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today's lecture's title is Oral Presentations Skills. What is oral presentation and what are the essential ingredients of a presentation and what should be kept while preparing and planning and any oral presentation, right? And then we'll talk about prepared and unprepared parts of any presentation. These are the overall review of this oral presentation, right? Next, presentation skill. What is presentation skill? This is very important. First, it should be clarified. Oral presentation or public speaking is a form of communication. ठीक है, this is a form of communication and this is oral. आप बोलते हैं और पब्लिक स्पीकिंग का एक आर्ट है. दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ public speaking, right? So oral presentation or public speaking is a form of communication. It is an art of speaking in a structured manner on a particular topic in front of a group of people for a specific purpose at a specific time and place. ये आर्ट है. स्पीकिंग भी एक आर्ट है और स्ट्रक्चर्ड मैनर में होता है. ऐसे नहीं कि आपने रैंडम कुछ भी शुरू कर देना है. इट इज़ स्ट्रक्चर्ड एंड इट इज़ ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक एंड इन फ्रंट ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस. आप किस पर्पस के लिए किस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, किस जगह पे कर रहे हैं, किस वक्त पे कर रहे हैं, कौन सी ऑडियंस है. ठीक है, यू शुड कीप दैट इन योर माइंड. So it is a skill that is learned and developed. ये कोई, this is not a natural phenomena. This is something, this is a skill which is learned, which is polished with the help of any guide. So we can say that these skills all are also very important in the workplace because most jobs require a high level of effective communication skills. आप कहीं पे भी जाते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, आपने क्लास में प्रेजेंटेशन देनी है, so you should have command on your communication skills, right? तो जॉब्स में तो बहुत ही, वर्क प्लेस पे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. And without these skills you will find yourself at a distinct disadvantage compared with those most skilled colleagues. So जो skilled होंगे, जिनको पता होगा how to make presentation, how to present, how to convince the audience with their own ideas, तो वो successful होते हैं. Now come to the next presentation. So there are two types of oral presentations, right? One is prepared and the other is unprepared. अब prepared कैसी होती है और unprepared, इसके पार्ट कौन कौन से होते हैं. Prepared presentation is contributing information to a seminar and tutorial. वो क्या होते हैं कि आपने जब इंफॉर्मेशन देनी हो, कंट्रीब्यूट करनी हो, यानी आपने किसी टॉपिक पे बात करें, जैसे कॉलेज में सेमिनार हुआ मेंटल हेल्थ के बारे में. So the presenters, they came up with the idea to give the information about mental health. What is mental health, what is the importance of mental health, and what should be kept in mind when we treat any person or when we find any person with some issues. किसी के अगर मसला है तो हमने किस तरह हैंडल करना है. They talked about that. So that is contributing information. That was very informative lecture and that included so much things into our information. ठीक है. फिर उसके बाद asking question in seminar. Sometimes when the presenter is standing on the rostrum, क्या होता है, sometimes he puts a question. और क्वेश्चन क्या होता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए होता है, टू कैच द अटेंशन ऑफ द लिसनर्स, के लिसनर्स जो है अटेंटिव हो, दे विल थिंक एंड दे विल ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. कि अगर उनको नहीं मालूम तो दे विल डेफिनेटली बी वेरी अटेंटिव, के जानने की कोशिश करेंगे व्हाट इज़ द आंसर.
और समटाइम्स वो क्वेश्चन पुट करके एंड पे उसका आंसर देते हैं या इन मिडल में दे देते हैं. सो दिस इज़ दीज क्वेश्चंस आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड. नेक्स्ट इज़ मेकिंग अ फुल रिपोर्ट टू अ सेमिनार. समटाइम्स द प्रेजेंटर गिव्स अ फुल रिपोर्ट टू अ सेमिनार. सेमिनार में मुकम्मल एक रिपोर्ट कोई देनी होती है कि कॉलेज की प्रोग्रेस रिपोर्ट है सपोज, फुल ईयर की आपकी बताई जाती है, अप्स एंड डाउन एंड ऑल दैट, या फिर एनुअल रिपोर्ट बताई जाती है, या कोई कहीं पे विज़िट किया और वहाँ के क्या सर्वे रिपोर्ट टाइप. सो दीज आर प्रिपेयर्ड थिंग्स. नेक्स्ट इज़ मेकिंग अ फॉर्मल प्रेजेंटेशन टू अ लार्ज ग्रुप ऑफ लिसनर्स. एक फॉर्मल जो प्रेजेंटेशन होती है ना, दैट इज़ ऑलवेज प्लान करके लिखी जाती है, प्लान की जाती है, कितने बजे शुरू होगी, कितने बजे नहीं शुरू होगी, कौन करेगा और कौन नहीं करेगा. दीज थिंग्स आर kept in mind while ओके. अनप्रिपेयर्ड प्रेजेंटेशन कौन सी होती है? दैट इज़ रिस्पॉन्डिंग अ क्वेश्चन. कोई क्वेश्चन उसने किया, किसी ने ऑडियंस में से कर लिया सपोज, तो क्या होता है, व्हेन द प्रेजेंटर इज़ आंसरिंग रिस्पॉन्डिंग टू द क्वेश्चन, तो वो प्रिपेयर नहीं होता, वो उसने उसी टाइम आंसर देना होता है. दैट इज़ स्पॉन्टेनियस. देन आस्किंग अ क्वेश्चन. समटाइम्स कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो कि प्रिपेयर्ड नहीं होते, ऑन द स्पॉट आपको करने पड़ते हैं. समटाइम ऑडियंस कर देती है एंड समटाइम्स जो प्रेजेंटर है वो खुद करता है. नंबर 3 इज़ डिस्कशन. डिस्कशन इज़ नॉट प्रिपेयर्ड. वो कैसे डेवलप होती है? व्हेन देयर इज़ कोई इंटरेक्शन होता है, ऑडियंस गिव सम कमेंट एंड द प्रेजेंटर ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन द नॉलेज और एड्स टू द नॉलेज और एड्स टू द इंफॉर्मेशन, उस पॉइंट्स को ऐड करता है. तो फिर क्या होता है, उसमें डिस्कशन जो होती है वो पहले से प्रिपेयर्ड नहीं होती है. ठीक है. सो द फर्स्ट पॉइंट आई टोल्ड यू व्हाट इज़ ऑरल प्रेजेंटेशन स्किल्स, देन टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन स्किल्स, प्रिपेयर्ड एंड अनप्रिपेयर्ड. Then what should be kept in mind while planning and preparing any presentation? क्या चीज़ें आपको जहन में रखनी है. ठीक है. These are very important, क्योंकि अगर आपको कोई बात ही नहीं सुन रहा, if your presentation is like इस तरह है कि हवा में है, you don't know the purpose, you don't know the audience, you don't know the nature of your presentation, you won't be able to perform better in front of योर ऑडियंस के सामने आप बिल्कुल जो है वो ज़ीरो हो जाएंगे. सो योर फर्स्ट कॉन्फिडेंस कम्स विद योर प्रिपरेशन, कि आप वेल प्रिपेयर्ड हैं, वेल इक्विप्ड हैं, आपके पास नॉलेज है, यू हैव द कमांड, राइट. कॉन्फिडेंस जो है ना, दैट इज़ द ब्यूटी. कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे तो यू विल डेफिनेटली डू समथिंग बेटर. सो what things should be kept in mind? First and the क्या कह सकते हैं, foremost or the most important thing is the aim. You should kept in mind what is the aim. आप अपने आप से सवाल करें, मेरा मकसद क्या है? Why am I doing this? क्यों ये प्रेजेंटेशन कर रही हूँ? सो देयर कैन बी डिफरेंट वैरायटी ऑफ पर्पसेस. एम कई भी हो सकते हैं. टू सेल अ प्रोडक्ट, टू कन्विंस अ पॉइंट, और टू गिव इंफॉर्मेशन देने के लिए कर सकते हैं. जैसे अभी मैंने बात की, किसकी बात की थी? मेंटल हेल्थ के बारे में बात की थी. और फिर इसी तरह से रिकमेंडेशन करने के लिए, टू अडॉप्ट एनी रिकमेंडेशन, कि आप रिकमेंड कर रहे हैं और आप चाहते हैं, कन्विंस कर रहे हैं कि वो इस आपकी रिकमेंडेशन पे उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें. ठीक है. एम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज़ द पर्पस, व्हाट इज़ द एम जो है. और सेकेंड थिंग इज़ टाइटल. आपने उसके टाइटल को जहन में रखना है. ठीक है. हाउ टू रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट. सपोज टाइटल बड़ा अट्रैक्टिव होना चाहिए, टाइटल को बड़ा इंटरेस्टिंग होना चाहिए, टाइटल ऐसा होना चाहिए कि कैची हो, आप लोग सुनना चाहें उसके बारे में. ऐसा मोनोटनस सा और बिल्कुल डल सा या कुछ ऐसी चीज़ ना हो, या एडवांटेजेस की बात की जाए या कुछ ऐसी पॉजिटिव बात की जाए कि आपका जो है टाइटल से ही अटेंशन जो है वो कैच कर ले. थर्ड थिंग आपके जहन में होनी चाहिए, ऑडियंस. हु एम आई स्पीकिंग टू. हु एम आई स्पीकिंग टू. मैं बात किससे कर रही हूँ? बच्चे से कर रही हूँ, बूढ़े से कर रही हूँ,
अनएम्प्लॉयड से कर रही हूँ, मैं अपने किस सर्कल में बैठी हूँ जहाँ मैं बोल रही हूँ. सो इज़ द टॉपिक अप्रोप्रिएट फॉर द ऑडियंस. ये मेरे जहन में होना चाहिए कि मैं इस जिस ऑडियंस के, सपोज स्टूडेंट्स के साथ आप स्टूडेंट से पहली बात करेंगे ना. सो इट शुड बी केप्ट इन माइंड कि इज़ द टॉपिक अप्रोप्रिएट फॉर द ऑडियंस. पहली बात जहन में रखनी चाहिए. फिर ये भी रखना चाहिए, आर दीज पीपल द डिसीजन मेकर्स, टॉप मैनेजर्स. कौन है ये लोग, इन्होंने डिसीजन मेक करना है या आपने अपनी राय बिल्ड करनी है, आप क्या करना चाहते हैं, वट आप किससे बात कर रहे हैं. डिसीजन मेकर वाला से बात कर रहे हैं तो आपने वैसी बात करनी है, वैसा टॉपिक लेना है. वाई शुड द ऑडियंस लिसन. आप अपने से सवाल करें कि मैं ऐसा क्या बोलूं कि मेरी बात सुनी जाए. ठीक है. अब बाज़ दफ़ा होता है कि आप अपने आप को ही ऑडियंस समझ लें. सपोज़ कि मैं ऑडियंस हूँ, मैं ये हूँ और मुझसे बात की जा रही, तो क्या मेरा इंटरेस्ट होगा इस चीज़ में, क्या मैं जाके सुनना चाहूँगी. सो दीज थिंग्स शुड बी केप्ट इन माइंड कि ऑडियंस क्यों सुनना चाहेगी, क्यों सुने, वो सवाल है ये. ठीक है. फिर उसके बाद जो है, वाई व्हाट आर द बेनिफिट्स टू द ऑडियंस ऑफ माई रिपोर्ट और स्पीच. मेरी स्पीच से, मेरी रिपोर्ट से, मेरी प्रेजेंटेशन से मेरे सुनने वालों को क्या फ़ायदा होगा, उनको क्या बेनिफिट हासिल होगा. ये नहीं है कि मैं सिर्फ बोलती जा रही हूँ और उनको कोई फ़ायदा भी नहीं हो. सो उनका बेनिफिट, उनका भी जो है क्या कहते हैं, बेनिफिट उनको मिलना चाहिए. देन हमें ये भी जहन में रखना है, व्हाट आर दे नो अबाउट द सब्जेक्ट. ठीक है. उनको इसके बारे में पता कितना है, जिसके बारे में आप बातें करने जा रहे हैं या टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, ऑडियंस को कितना पता है, कितना नॉलेज है उस सब्जेक्ट के बारे में, उस टॉपिक के बारे में. हाउ डज़ दिस चेंज माई अप्रोच. ठीक है. और ये मेरी अप्रोच जो है, ये जो मेरी बात है, ये इनकी अप्रोच को कैसे चेंज करेगी. व्हाट एस्पेक्ट्स विल दे बी इंटरेस्टेड इन. किस तरह के पहलू में इंटरेस्टेड होंगे. जैसे सपोज़ वहाँ पे मेंटल हेल्थ की बात की गई, मेंटल हेल्थ क्या है, इसमें वो इंटरेस्टेड हैं. मेंटल हेल्थ के इशू को हमने डील कैसे करना है, इसमें वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे. या मेंटल हेल्थ को बिल्कुल वो इग्नोर कर देना चाहेंगे कि छोड़ो परे, डोंट टॉक अबाउट दैट. क्या चीज़ जो है वो किस पहलू में इंटरेस्टेड होंगे. सो नेक्स्ट थिंग इज़, व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन विल दे आस्क मी. प्रेजेंटेशन के लिए हमें भी तैयार होना पड़ता है कि क्लास में भी जाते हुए तो स्टूडेंट्स क्या होते हैं, हमारे उस्ताद होते हैं. क्यों होते हैं, बिकॉज उनसे हम सीखते हैं. वो सवाल करते हैं तो हम जवाब उनका ढूंढते हैं. ठीक है. समटाइम्स वी नो एंड समटाइम्स वी डोंट नो, तो हम उसे फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. सो वो सवाल भी सोच के रखा होता है, ये सवाल मुझसे पूछा जा सकता है और दीज क्वेश्चंस आर एक्सपेक्टेड. ठीक है. फिर उसके बाद आप ये भी सोच के रखते हैं, व्हाट आर द आंसर्स. अगर ये मुझसे सवाल किए जाएंगे तो ये मैं जवाब दूंगा या दूंगी. डू दे अंडरस्टैंड टेक्निकल लैंग्वेज और नॉट. आप अगर टेक्निकल लैंग्वेज कोई इस तरह का टॉपिक या इस तरह की चीज़ या ऐसी टर्म में यूज़ करने जा रहे हैं, तो अगर आपके सामने ऑडियंस ऐसी बैठी हुई है जो कि जिनका टेक्नोलॉजी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो फिर क्या होगा, वो इस चीज़ को इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे, उसमें उसको उस चीज़ को अंडरस्टैंड ही नहीं करेंगे. सो ये चीज़ें जो हैं आपको ऑडियंस से रिलेटेड जो हैं, यू मस्ट नो दीज थिंग्स वाइल प्रिपेयरिंग एंड प्लानिंग एनी प्रेजेंटेशन. फिर उसके बाद जो है आपने क्या चीज़ें जहन में रखनी है, व्हेन यू आर लाइक मेन पॉइंट्स. आपने जो है अपनी जो प्रेजेंटेशन है उसको 3 मेन पार्ट्स में तकसीम करना है. राइट. बिगिनिंग, मिडल एंड एंडिंग. ठीक है. उसकी बॉडी जो है दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. मेक श्योर द प्रेजेंटेशन डिफर्स फ्रॉम द रिटन रिपोर्ट. प्रेजेंटेशन ऐसे नहीं लगनी चाहिए कि जैसे कोई रिटन हो, लिखा हुआ है और लिखे हुए पढ़ रहे हैं. इट शुड बी वेरी लाइवली. और प्रेजेंटेशन ऐसी होनी चाहिए जैसे यू आर कम्युनिकेटिंग एंड यू आर प्रेजेंटिंग एंड यू आर टॉकिंग विद द ऑडियंस. ठीक है. एक ख़ास किस्म का एक बॉन्ड होना चाहिए, उनके इंटरेस्ट, उनका अटेंशन आपने ग्रास्प करनी है. नेक्स्ट इज़ एंड द लास्ट वन इज़
एक्सपेक्टेड आउटकम्स आफ्टर लिसनिंग टू माई प्रेजेंटेशंस। आपने पहले से ही सोच लेना है कि मेरे जो प्रेजेंटेशन मैं करने जा रही हूँ उसके आउटकम्स क्या होने चाहिए और क्या हो सकते हैं। आप जो प्रेजेंटेशन कर रहे हैं उसके आपको आउटकम्स भी पता होने चाहिए। जैसे आपने कोई कोई भी हो सकता है कि आपने कुछ सिखाया हो तो उनको समझ आ जाए, या आपने कोई उन्हें कन्विंस करने की किसी पॉइंट पे कोशिश की हो, वो भी उन्हें समझ आ गई, वो कन्विंस हो गए हों, या उनके नॉलेज में इजाफा हो गया हो। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपके जहन में होनी चाहिए। देन आपने जब प्रेजेंटेशन करनी है आपने उसकी फ़िज़िकल एस्पेक्ट्स को भी जहन में रखना है। प्लानिंग करते हुए आपने यू मस्ट कीप फिज़िकल एस्पेक्ट्स एज वेल इन योर माइंड। फिर पहली बात तो आपने जहन में क्या रखनी है, पीपल, ऑडियंस के बारे में सबसे पहले पता होना चाहिए। हाउ मैनी पीपल विल देयर बी इन द ऑडियंस। क्वेश्चन नंबर 1, 100 लोगों ने अटेंड करनी है, ठीक है, वहाँ पे थाउजेंड्स में लोग होंगे या सिर्फ और सिर्फ 10-12 लोग होंगे। हाउ मेनी पीपल क्वेश्चन है, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपने करनी है, वेयर विल इट टेक प्लेस। वेयर कहाँ पे होगा, कौन सा कमरा है, बड़ा हॉल है, सेमिनार रूम है, कॉन्फ्रेंस रूम है, या एक छोटा सा क्लासरूम है, कोई भी जगह हो सकती है। तो यू शुड नो वेयर विल इट टेक प्लेस। नेक्स्ट व्हेन, आपको पता होना चाहिए when will it take place, कब होगा, मॉर्निंग में, इवनिंग में, आफ्टरनून में, टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कब होगा। देन आपने ये भी जहन में रखना होता है जब आपने वेयर में करना है ना, तो आपने जहन में रखना है हाउ बिग इज़ द रूम, कितना बड़ा कमरा है, इज़ इट ब्राइट, क्या ये ब्राइट है कमरा और नॉट, या डार्क है कमरा। आपने ये भी जहन में रखना है व्हाट इक्विपमेंट्स आर देयर। इक्विपमेंट्स में से मुराद क्या है, वहाँ पे साउंड सिस्टम है, वहाँ पे माइक काम कर रहा है, वहाँ पे स्पीकर की ज़रूरत तो नहीं है, वहाँ पे वाइट बोर्ड है, वहाँ पे आपको पॉइंटर की ज़रूरत तो नहीं है, लाइट पॉइंटर जो होता है, या एनी थिंग रिलेटेड टू दैट थिंग आपको उसकी ज़रूरत है। इलेक्ट्रिसिटी ठीक है, केबल, इंटरनेट कनेक्शन, और आपके पास कंप्यूटर है, ऑल दीज थिंग्स आपको पता होना चाहिए, ऑल दीज आर इन वर्किंग कंडीशन, राइट। फिर उसके बाद साउंड सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। साउंड सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब अगर आवाज़ ही ठीक नहीं आ रही, या बहुत लाउड आवाज़ है, या क्लियर ही नहीं है, या मुझे तो बहुत लगता है कि साउंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप प्रॉपर सुन नहीं पा रहे हैं या बहुत लाउड है, तो डेफिनेटली उसका असर तो बहुत होता है, ठीक है। तो इट देयर शुड बी प्रॉपर साउंड सिस्टम ओवर देयर। फिर उसके बाद जो है टाइम कॉन्स्ट्रेंट, अगर आपको कहा गया कि 15 मिनट्स आपने लेने हैं एक स्पीकर ने, तो आपको रिस्पेक्ट करनी होगी इस टाइम कॉन्स्ट्रेंट की, ठीक है। नॉट ओनली आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द ऑडियंस बट ऑल्सो फॉर द इफ़ेक्टिवनेस। अगर आप बहुत ज़्यादा बोलना शुरू कर दें, या टाइम से ही निकल जाएं, या बहुत ही कम बोलें, तो वो फिर ना तो बहुत लंबा करने से उसकी वर्थ रहती है, ना उसका इंटरेस्ट इतना रहता है, और जितना टाइम दिया जाए एक स्पीकर को उतना ही उसे यूज़ करना चाहिए, ठीक है। देन कीप टू द एसेंशियल्स, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके साथ आप रहें। ट्राई नॉट टू डिसएग्री करने की ज़रूरत नहीं है, कोशिश करें कि एग्री ही करें, लेकिन डिसएग्री ना करें, वहाँ तो लड़ाई होने शुरू हो जाएगी अगर डिसएग्री करेंगे। सो सम पीपल आर वेरी एग्रेसिव, सो वो अपने आप को कहते हैं हम ठीक हैं, तो फिर कह दें ठीक है चलो। Also be ready to adjust content to audience or their time constraint. Audience के साथ भी उनके इसको रखें जहन में। What can be eliminated if time is short or if the audience is more familiar with the content than expected. अगर तो ऑडियंस आपके टॉपिक को पहले से ही बहुत ज़्यादा जानती है, तो फिर अननेसेसरी डिटेल्स को, जो बेसिक चीज़ें होती हैं, उनको निकाल देना चाहिए। अपनी खुद ही से अपनी प्रेजेंटेशंस में से उन पॉइंट्स को निकाल दें, क्योंकि वो ज़रूरी नहीं है, वो लेंथी आप करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं दे शुड बी एडेड, और जो नहीं है उनको निकाल देना चाहिए, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ भी मेंशन नहीं की, दैट इज़ ड्रेस
प्रॉपरली, आपने प्रॉपर ड्रेसअप होके जाना होता है। उसके लिए आपको जो है किन के सामने आप प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, कौन आपकी ऑडियंस है, तो ड्रेस अप्रोप्रिएटली, मुनासिब अंदाज में, अच्छे तरीके से, प्रेजेंटेबल वे में आपने प्रेजेंटेशन देनी होती है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि बड़े हेल्पफुल होंगे इंशाल्लाह आपके लिए। सॉरी। ओके जी, दिस इज़ आई थिंक इनफ फॉर टुडेज़ लेक्चर। अब मैंने ब्रीफ सा जस्ट आई हैव टोल्ड यू व्हाट इज़ ऑरल प्रेजेंटेशन, उसकी टाइप्स से तो नहीं कह सकते, लेकिन उसमें पार्ट ऑफ प्रिपेयर्ड एंड अनप्रिपेयर्ड पार्ट ऑफ एनी प्रेजेंटेशन। फिर मैंने बताया कि प्लानिंग और प्रेजेंटेशन के वक्त आपको क्या क्या चीज़ें, व्हाट थिंग्स शुड बी केप्ट इन माइंड। और फिर उसके बाद जो है फॉर एन इफ़ेक्टिव प्रेजेंटेशन के लिए आपको ऑडियंस का पता होना चाहिए, एम पता होना चाहिए, टाइटल आपको कैची बनाना चाहिए, फिर उसके बाद आपको उसके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आंसर्स पता होना चाहिए, और फिर उसके बाद आपको उसका आउटकम भी थोड़ा आइडिया होना चाहिए। सो दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। Thanks for watching, thanks for listening, and I wish you all the success in your life. Thank you very much. Allah Hafiz.